الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز و محترم ناظرات و سامعات، اس مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، کوشش کروں گا یہ بات بتانے کی قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کیا کردار رہتا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے ماؤں پر کہ وہ کس انداز سے تربیت کریں گے، کس انداز سے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ایمان، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی ان کی مکمل دنیا اور آخرت بنانے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ ان چند گزارشات پر آپ ضرور دھیان دیں گے، صرف آپ کے کان ہی نہیں بلکہ آپ کے دل میں چاہوں گا کہ دل سے ان باتوں کو سننے کی آپ کوشش کریں، کس قدر ضرورت ہے اس وقت ہمیں۔ اگر ہماری بچی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، اس کی کتنی بڑی ذمہ داری عام حالات میں بھی بنتی ہے، لیکن آج کے حالات میں اور زیادہ کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد عطا کی ہے، قرآن پاک میں اولاد کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نعمت ہے یہ۔ اولاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور اولاد کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ تمہاری دشمن ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں بتایا یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، کہیں فرمایا یہ تمہارے دشمن ہے، اور کہیں فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ گویا کب بنیں گی یہ فتنہ، کب ہوں گی یہ بنیں گی یہ نعمت، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ماں کا، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ماں کا اس میں۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ یاد رکھیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ ہم اس کو نعمت کے طور پہ پہلے لیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ ان سے پوچھیں جن کی کوکھیں خالی ہیں، جن کی گودیں خالی ہیں، جو اولاد کے لیے ترستی ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہذا جس کو بھی یہ اولاد ملی ہے اس کو نعمت سمجھ کر اس کو نعمت ہی بننے
की कोशिश आपने करनी है कि नियामत ही बने ये हमारे लिए, आपके लिए। देखिए कहाँ अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नूह में फरमाया है, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, यानी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा जब आप इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल अता करके और औलाद अता करके। यहाँ औलाद को एक नियामत के तौर पे बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने। और फिर आप देखेंगे एक जगह अल्लाह तबारक तआला ने सूरह तगाबुन में फरमाया आयत नंबर 15 में कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे ये माल और तुम्हारी ये औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। ये आयत नंबर 15 है सूरह तगाबुन की, आजमाइश। और फिर सूरह तगाबुन ही में आयत नंबर 14 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम, ए ईमान वालो बेशक तुम्हारी जो ज़ौज हैं, अज़वाजुकुम, ज़ौज अरबी में शौहर को भी कहते हैं और बीवी को भी कहते हैं। यहाँ हम ज़ौजा कहते हैं बीवी को, ये हमारी समझो ये मेड इन इंडिया अरबिक है। अरब में आप देखेंगे वो दोनों के लिए ज़ौज ही इस्तेमाल होता है, बीवी को भी और शौहर के लिए भी। फरमाया तुम्हारे ये स्पाउस जो हैं, तुम्हारे ये जो लाइफ पार्टनर जिनको आप कहते हैं, ये तुम्हारी बीवियां हैं, ये तुम्हारे शौहर हैं, और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे अदुव्वल लकुम, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, फहज़रूहुम, इनसे बच कर रहो। खुद ही आप समझ जाएंगे कि कब ये दुश्मन बनते हैं, औलाद तुम्हारी कब ये दुश्मन बनेगी, कैसे बनेगी। बहरहाल उस पर बाद में आ जाऊंगा। गोया 3 किस्म की जो बयानात आए हमारे सामने, तारीफ़ें आई हमारे सामने औलाद की, ये कभी फितना, कभी जिसको हम फितने क्या होता है, आजमाइश होता है, और कभी इसको नियामत कहा है और कभी इसको दुश्मन कहा है। अब कैसे हम इनको नियामत बना के रखेंगे, जब हमने उसका हक अदा किया हो, बचपन से इस बात का ध्यान रखा हो, जब छोटा बच्चा होता उसी वक्त से जो हमें सिखाया गया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बात फरमाई है, 7 साल तक हमने बच्चे को, इस तरह किसी एक फलसफी ने बताया है कि इसको गोद अता करनी है, इसके साथ बेहद प्यार करना है, कोई बोझ नहीं डालना है। बदकिस्मती आज है 3 साल का बच्चा होता है, उसको हम घर से निकाल देते हैं, किसी स्कूल में पहुंचा देते हैं तो अलग बात है, लेकिन 7 साल तक तो नमाज के लिए भी हम उसे नहीं कहेंगे। यह हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। कई मुल्कों में आप देखेंगे वहाँ 7 साल ही की उम्र रखी है जब उसको एडमिशन मिलती है स्कूलों में, तब तक उसे बस उसकी सेहत का ख्याल रखना है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना है। गोया उसे गोद अता करनी है, प्यार अता करना है, उसकी चाहतें पूरी करनी है 7 साल। फिर जो अगले 7 साल हैं उनमें उसको गुलाम बना के रखना है। उसमें के उसका फ़लसफ़ा क्या है, गुलाम से मुराद क्या है कि उसकी बात ज़्यादा नहीं माननी है, खुद मनवानी है। उसे ऑर्डर करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये अगले 7 साल होंगे। फिर उसके बाद और 7 साल जो होंगे उसमें आपने उसे अपना फ्रेंड बनाना है, दोस्त बनाना है, बेहतरीन दोस्त बनाना है, उसे समझाना है, उसको उसके साथ साथ रहना है, उस पर अपने डिसीजंस थोपने नहीं है, उसको मौका देना है कि वो अपने ख्यालात, वो अपने मशवरे, वो अपनी तजावीज़ तुम्हारे साथ शेयर करे, आप उसके दोस्त बने। बहरहाल ये 7 और 7 का जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है। अगर हमने पहले 7 साल ज़ाया किए, दूसरे 7 साल भी ज़ाया किए, फिर हमें पछताना ही पछताना होगा। फिर ये हमारे लिए नियामत नहीं होंगे, फिर ये हमारे लिए इनाम नहीं होंगे, फिर ये हमारे लिए कुछ और बनेंगे, अल्लाह बचाए। उसकी मिसाल कुरान ने हमें दी है। अल्लाह का इरशाद होता है, वनादा नूह निब्नहू, और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, वकान फी मअज़िल,
जबकि वो था किनारे पे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार थे, उनके प्यारे साथी कश्ती में सवार थे, और उनका एक बेटा जो था वो नाफरमान था। आप सब जानते हैं हाम, साम और याफिस, तीन जो उनकी औलाद हैं, तीन बेटे, उन्हीं का बहुत सारे मुहक्किकीन कहते हैं कि ये सारी जो दुनिया है, जितने भी इंसान है, ये उन्हीं तीन की औलाद है। अगर जिसमें कुछ इख्तलाफ भी है, लेकिन उन्हीं की तीन की औलाद कहा जाता है ये। उनका जो चौथा बेटा था उसका नाम था याम, कनान उसका लक़ब था। ये जो याम था ये नाफरमान था। उसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि जब तूफान बुलंद हो रहा था, कश्ती में थे नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बेटे को उस वक़्त पुकारा। जो बेटा कश्ती में सवार नहीं हुआ, दूर था, वो किनारे पे था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इरकम माना, सवार हो जाओ हमारे साथ, वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ मत हो जाओ। बेटा कुछ भी हो, मोहब्बत होती है बाप के दिल में, माँ के दिल में। पेरेंट्स जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत होती है, कितना भी कोई नाफरमान हो। जब वो डूबने के करीब था, जब सैलाब बुलंद हो रहा था, उस वक़्त नूह अलैहिस्सलाम ने प्यार से, मोहब्बत से, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे कहकर पुकारा और कहा कि सवार हो जाओ हमारे साथ, और अहले कुफ्र के साथ मत हो जाओ। तो बेटे ने क्या जवाब दिया? क़ाल सआवी, उसने जवाब दिया कि मैं अनकरीब पनाह लूँगा, चढ़ूँगा, इला जबलिन, इस पहाड़ी पर। ये जो पहाड़ है इसकी चोटी पर मैं चढ़ जाऊँगा, ये मुझे पनाह देगा, गोया ये मुझे बचा लेगा। यहाँ तक ये पानी कैसे पहुँच सकता है? यासिमुनी, ये मुझे बचाएगा, मिनल मा, पानी से, पानी में डूबने से ये मुझे बचा लेगा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल ला आसिमल यौम, आज कोई नहीं बच सकता, आज बचाने वाला कोई नहीं है, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अम्र से ये मुराद है यहाँ पे कहर, अल्लाह के कहर से बचाने वाला आज कोई नहीं है। इल्ला मर रहीम, सिवाय वही जिसको अल्लाह ही बचाए, बस वही बच सकता है और कोई नहीं बच सकता। वहाल बैनहुमल मौज, ये गुफ्तगू हो रही थी बाप और बेटे के दरमियान, इसी दौरान हाइल हो गई, उनके बीच में हाइल हो गई अल मौज, एक मौज, एक लहर। फकाना मिनल मुगरकीन, तो वो हो गया डूबने वालों में, यानी वो डूब गया, मर गया। इस वाक़े में थोड़ी देर के लिए आप गौर फिक्र करें। कभी कभी सोचना चाहिए तन्हाई में बैठकर, माँ हो या बाप हो, उनके दिल में जिस कदर मोहब्बत होती है, उनके दिलों में जिस कदर भी अपने बेटे के लिए शफकत होती है, वो अपनी जगह है। और फिर वो अपनी तरफ से अगर भरपूर कोशिश करें तरबियत करने की अपनी औलाद को, उसमें कामयाबी मिलती है, अक्सर औकात कामयाबी मिलती है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, छोड़िए अब कुछ रहते हैं, अब यहाँ तो नबी की औलाद थी, उन्होंने कोई कमी तो नहीं रखी होगी, जिन्होंने सारी दुनिया के लिए 950 साल बड़ी मेहनत और जिदोजहद की, लेकिन उस बेटे के मुकद्दर ही क्या थे या उसकी क्या वजह थी, वो फिर भी बाहर रहा। लेकिन अगर हम और आप, हमारी माएँ अगर भरपूर कोशिश करेंगी, 100% अगर नहीं तो 99% चांसेस होते हैं कि उनके असरात बच्चे कबूल करते हैं। माँ का मकाम उसमें ज़्यादा, माँ के फ़राइज़ ज़्यादा है इस सिलसिले में, बाप से भी ज़्यादा। माँ के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। हम इसको एक और एतबार से देखते हैं कि बस ये बड़ी अज़मत की बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ ये कहा गया है कि उनके कदमों के तले जन्नत है, वहाँ आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई बेटा, कोई बेटी जन्नत से महरूम रहेगी तो उसका सवाल भी माँ से होगा।
इसका एक पहलू ये है कि अगर कोई बेटा गलत राह पे चला, कोई बेटी गलत राह पे चली, सवाल माँ से भी होगा। वह माँ के इख्तियार में था, इसीलिए कहा उसके पांव तले जन्नत है। अगर उसने तरबियत का हक अदा किया होगा तो बहुत कम चांसेस फिर रहते हैं कि कोई इतना बदबख्त हो कि माँ की तरबियत के बावजूद कोई बेटा कोई बेटी न सुधरे। तो बहरहाल ये वाक़ा जो है, जब वो डूब जाता है, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से कि ये मेरा जो है, ये मेरा बेटा है, वो मेरे अहल से ताल्लुक़ रखता है, ये मेरा फैमिली मेंबर है। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि आपका फैमिली मेंबर नहीं हो सकता, इसका अमल जो है वो गैर सालिह है। और साथ ही फरमाया, आइंदा इस किस्म का सवाल मुझसे न करना, वरना तुम जाहिलों में से हो जाओगे, नादान हो जाओगे अगर तुमने इस किस्म की सिफारिश की या इसके बारे में कुछ। तो फिर फौरन नूह अलैहिस्सलाम ने तौबा की, माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं चाहिए था। बहरहाल वो अलग मौज़ू है, इस पर उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा। तो ये एक तरफ हमारे जहन में ये बात रहे कि वालिदैन चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से बहुत अच्छा उनका बच्चा हो, बहुत बेहतर बने हो, और फिर इंतज़ाम भी करते हैं उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का, उनको तालीम की तरफ भी तवज्जो दी जाती है। लेकिन खाली तालीम से बात नहीं बनती जब तक ना तरबियत का भी बंदोबस्त किया जाए। आप आज देखेंगे बच्चों को दुआएं याद हैं, हमने उनको सिखाई दुआ कि शाम को जब आपने सोना है तो क्या दुआ आपने पढ़नी है, जागेंगे सुबह क्या पढ़ेंगे, आप जुबान से क्या कहेंगे। लेकिन खाली उससे काम नहीं चलता, तरबियत भी साथ है। तरबियत यह है कि देखना है क्या सोते वक्त ये उस दुआ, ये वो अल्फाज दोहरा रहे हैं कि नहीं दोहरा रहे। इनको वॉशरूम जाना है तो जाने से पहले क्या ये दुआ कर रहे हैं, देखना है। अगर नहीं की, दोबारा उनको बाहर निकालना है, दोबारा भेजना है कि ऐसे करो। पहले कौन सा पैर कदम आपने अंदर रखना है, बाहर आएंगे तो पहले कौन सा रखेंगे, और देखना है क्या ऐसा इस बात पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी जुबान शुस्ता है या नहीं है, किस किस्म की चीजें कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अगर आपकी वजह से कोई कोताही रही अपने बच्चों की तरबियत में, तालीम में या तरबियत में, इसका खिमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और इसका जो असर है, इफेक्ट जो इसका दूर तक जाता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आज जिस वक्त भी कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, उसे फौरन क्यों नहीं भेजा जाता है जन्नत में या जहन्नम में? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? जब भी कोई रुखसत हो जाता है इस दुनिया से, किसी की वफात हो जाती है, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था फौरन उसको भेज देते जन्नत या जहन्नम? लेकिन क़यामत तक का इंतजार करना होगा, क़यामत तक का इंतजार करना होगा, उस वक्त फैसला होगा किसको जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना। क्यों? इसकी वजह यह है, सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं, एक आयत करीमा है सूरह यासीन की, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, बेशक हम जो है हम जिंदा करेंगे मुर्दों को। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और हम लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा, व आसारहुम, और जो आसार उन्होंने पीछे छोड़े। ये क्या है इसका मतलब? यानी जो पीछे इंसान छोड़ता है, कुछ पीछे भी छोड़ता है। जो आगे भेज दिया काम आपने किया वो तो आगे भेज दिया, लेकिन पीछे भी कुछ आसार इंसान छोड़ते हैं। वो आसार क्या है? वो आसार ये है, अगर आपने किसी अच्छे काम की इब्तिदा की है, जब तक वो चलता रहेगा, अगर आप दुनिया में नहीं है उसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। अगर आपने किसी बुरे काम का आगाज किया है, किसी बुरी चीज को पीछे छोड़ा है, जब तक वो बुरे काम करता रहेगा, सिर्फ उसे ही उसका खिमियाजा नहीं भुगतना होगा, तुम्हें भी भुगतना होगा। मसलन मैं मिसाल दूंगा, अगर किसी शख्स ने, हमारी किसी बहन ने अपनी बेटी या अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, उसे गलत राह पे डाल दिया, गलत राह पे डाल दिया, खुद जब उसकी मौत भी हो जाएगी, वो शख्स जो है वो गलत काम कर रहा होगा
یعنی کسی قسم کے شرک میں یا بدعت میں یا کسی قسم کے حرام کام میں وہ مصروف رہا تو جب تک وہ کرتا رہے گا اس کے کھاتے میں بھی وہ گناہ چڑھتے جائیں گے. پھر اس کا اثر وہیں پہ نہیں رکے گا, اس کی اولاد آگے ہے وہاں چلے گی, پھر اس کی اولاد آگے چلے گی, بہت دور تک جاتا ہے. یہ کہیں ایک ہی جگہ نہیں رکتا ہے. نیک کام اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور برا جو ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے تربیت کمی رہی کسی وجہ سے بھی کسی شخص کی, اس نے کسی کو قتل کیا, اب اس نے قتل کر کے ایک گناہ تو کیا, اس کی ماں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے اگر اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی رہی ہوگی. اب اس نے جب کسی شخص کو قتل کیا, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اثر پڑا بچوں پر بھی, ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی, اس کا اثر پھر ان کے بچوں پر بھی آگے پڑے گا, اس کا بچے اثر ان کے آگے بچوں پر بھی پڑتا جائے گا, یہ دور تک ان کے آثار جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نحن نکتب ما قدموا وآثارہم, جو آثار جو اثر ان کے رہتے ہیں تمہاری وجہ سے, کوئی بھی کام جو تم نے کیا ہے اچھا کیا ہوگا اس کا بھی آثارات کے رہیں گے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے جب حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ایک بستی میں گزرے, اس کو گرا ہوا دیوار گرا چاہتی تھی, اس کو درست کر دیا. جب پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہ آپ نے انہیں کھانا بھی ہمیں نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ان کے آبا صالح تھے, اس میں خزانہ ایک دفن تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 پشتوں سے پہلے اس کے باپ کا خزانہ نہیں تھا, بلکہ اس سے پہلے 7 پشتوں کا جو ان میں کوئی جد تھا اس نے وہاں رکھا تھا. وہ بڑا نیک تھا, وہ خزانہ وہاں رکھا تھا, اس کی وہ نیکی کام آئی 7 پشتوں کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے خضر کو بھیجا کہ اس کے مکان کو درست کر دو, ان بچوں کا کب فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. اگر آپ کے آثار اگر آپ کے کام ایسے ہوں تو یہاں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ نے تربیت کی اپنے بچوں کی, بہت بہتر تربیت کی, وہ سدھر جائیں گے تو ان کے آثار چلتے جائیں گے, آپ کے کھاتے میں نیکیاں شامل ہوتی جائیں گی اگر آپ دنیا میں نہ بھی رہے. یہاں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک بڑا طویل موضوع ہے, اگر ہم بڑھتے جائیں گے کہ والدین یا ماں خصوصاً اس کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے, کس انداز سے. اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ, ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد, جب موت قریب آ گئی یعقوب علیہ السلام کی, اس نے کیا اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اسی طرح سے لقمان نے کیا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, یعنی کتنی ذمہ داری بنتی ہے, باپ ہو یا ماں ہو, والدین جو ہے ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ ان آیات پہ غور و فکر کریں گے تو سب سے پہلا کام یہاں واضح ہو جاتا ہے ماں کا یا باپ کا, وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو وہ جہاں دودھ پلاتی ہیں تو دودھ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے توحید بھی پلائی جائے, شرک سے ان کو دور رکھا جائے, پہلی بات یہی کہی جاتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لقمان نے کیا کہا کہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس, یعنی کس قسم کی نصیحت کی, کیا کیا آپ نے سکھانا ہے, زیادہ زور کس کو دینا ہے, یہاں بھی پریارٹیز ہوں گی, یہاں بھی ترجیح ہوگی. پہلے توحید پہ زور آپ نے دینا ہوگا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ, تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں, نفع اس کے ہاتھ میں, نقصان اس کے ہاتھ میں. یہ سب چیزیں درجہ بدرجہ آگے چلتی جائیں گی. تو یہ آپ پہلا کام یہ ہمارا ہوگا. ان کے اخلاق کس طرح سے آپ نے سدھارنے ہیں, کیا سمجھانے ہیں. تو یہ میں اس وقت کہوں گا کہ ماں کی یہ ذمہ داری بڑی بنتی ہے کہ ان چیزوں کی تربیت کرے آگے. اس وقت جو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ
آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، نافرمان اولاد آپ کو ملے گی، انتہائی نافرمان، ماں باپ کے نافرمان۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ کا بھی نافرمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ جہاں پہلے اپنا ذکر کیا، میری بندگی کرو، ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کیا ہیں، خود ہی فرمایا آپ نے الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ کون سے ہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے پہلی بات جو بتائی الاشراک باللہ، یعنی شرک، اور ساتھ ہی دوسری چیز جو بتائی آپ نے وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تو اگر آپ دیکھیں گے آج والدین کی اگر نافرمان ہے یا شرک میں مبتلا ہے تو اس کے پیچھے بھی جب جائیں گے وجوہات کیا ہوں گی، میں ان وجوہات کو اب تھوڑا سا بیان کروں گا، پھر بند کروں گا یہیں پہ۔ 10 منٹ چوئے کتنے؟ پہلی وجہ کیا ہے اس کی کہ اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں نافرمان اولاد ہے۔ پہلی وجہ جو ہے والدین کی بے توجہی، سب سے پہلے کہ ماں ہو یا باپ ہو وہ کوئی توجہ نہیں کرتے بچوں کی طرف، انہیں توجہ نہیں دی ہے، تربیت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا کہ آپ کو توجہ رکھنی ہے اور کیسے رکھنی ہے، کس قدر دھیان رکھنا ہے ان کے اخلاق بنانے میں، ان کا کردار بنانے میں، کس قدر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، کون نہیں واقف آپ کے نام سے، کس قدر عظیم شخصیت ہے، صرف یہاں نہیں بلکہ تقریباً ہر ملک میں انہیں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور ان کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ ابھی جوانی ہی میں تھے یا بچپن ہی میں تھے، زیادہ ابھی ان کی عمر تھی نہیں، مطالعہ کچھ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ایک سائل آتا ہے اور مانگ رہا ہے، کچھ زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے، جس طرح وہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے تھوڑا سا برداشت کیا پھر میں باہر آیا تو میں نے اس کے سر پہ مارا، ایک ڈنڈا مارا، جو کچھ جمع بھی اس نے کیا تھا وہ بھی گر پڑا۔ کہا میرے والد نے دیکھا کہ میں نے ایک سائل کو مارا ہے تو اس نے کیا کیا، علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا، ان الفاظ پہ غور کریں، کیا کہا، بر پدر این جور نازی با مکن، پیش مولا بندرا رسوا مکن۔ انسان کے آنسو نکل آتے ہیں کہ کس درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ اس کے والد نے اقبال سے کہا کہ اپنے باپ پر ظلم مت کرو۔ اس سے پہلے جو اشعار میں مختصر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ والد نے مجھ سے کہا کہ ذرا سوچو اقبال، قیامت کے دن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سارے لوگ جمع ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، میں، آپ سب، تو وہاں اگر یہ سائل کھڑا ہو گیا اور میرے آقا سے، میرے نبی سے اس نے کہا کہ تیرے اس بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا، تو ذرا بتاؤ میرا کیا حال ہوگا۔ تو یہی بتایا، بر پدر این جور نازیبا مکن، اپنے باپ پر یہ نازیبا ظلم مت کر، پیش مولا بندرا رسوا مکن، میرے آقا کے سامنے، میرے مولا کے سامنے مجھے رسوا مت کر۔ کیا جواب دوں گا میں، کون سا منہ لے کر جاؤں گا میں؟ دیکھیے اب کیا تربیت ہے۔ دوسری بات کہ پیارے نبی مجھ سے پوچھیں گے، وہ مجھ سے بتائیں گے، آج تو یہ کار آسان ہم نشد، یعنی انبار گل آدم نشد۔ کیا بات کہ وہ مجھ سے کہیں گے کہ ایک آسان کام اللہ تعالیٰ نے تیرے سپرد کیا تھا، اس کی تربیت کا، یہ انبار گل ہے، گل مٹی کو کہتے ہیں، یہ انبار ہے، دہر ہے، ایک دہری ہے یہ مٹی کی، اس کو تو نے آدم بنانا تھا، انسان بنانا تھا،
तो ये आसान एक काम था, तूने ये क्यों नहीं किया? क्या जवाब दूंगा मैं वहां? इस बात को मेरी माएँ, मेरी बहनें याद रखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर हमसे, आपसे पूछा कि ये अल्लाह ने जो तुम्हारे सुपुर्द ये अमानत की थी, ये बेटा जो आपके सुपुर्द किया था, ये बेटी जो आपके सुपुर्द की थी, ये एक अंबारे गिल था, ये क्या था? मिट्टी की एक ढेरी थी, तुमने इसको इंसान बनाना था, इनकी तरबियत करनी थी। और तरबियत में भी पहले तौहीद पिलानी थी, दूध के साथ साथ इन्हें समझानी थी, मोहब्बत पिलानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत पैदा की। अब देखिए किस अंदाज से मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी, इकबाल के दिल में डाल दी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और समझाने का तरीका भी क्या था? तो पहली वजह जो आज हम आसपास देखते हैं, किस किस्म की अखलाकियात हैं, किस किस्म की तबाहियाँ हैं, बदतमीजियाँ हैं, पहले ये घर से शुरू होती है। जब माँ ने तरबियत नहीं की बच्चे की, वो बदतमीज़ बन गया, तो फिर ये खानदानी बदतमीजियाँ जो है कौमी बदतमीजियाँ बन जाती हैं। फिर कौमी सतह पे इसी किस्म का वो वेव चलती है, लहरें चलती हैं, बाहर आ जाते हैं सारे लोग, फिर समझी जाती है कि कौम ही बदतमीज़ कौम है। तो कौमी बदतमीजियाँ कैसे वजूद में आती हैं? शुरू कहाँ से होती है ये बात? खानदान से, घर से। तो खानदानी बदतमीजियाँ ही फिर कौमी बदतमीजियाँ बन जाती हैं। तो पहली चीज़ ये कि पहला जो इसमें हम कहेंगे कसूरवार है, इसमें वजह जो ये है कि औलाद की तरबियत का खातिर ख्वाह इंतज़ाम और बंदोबस्त नहीं किया जाता। हम समझते हमने स्कूल में बच्चे को भेज दिया, अब उनका काम है, मदरसे वालों का काम है कि इनको समझाएं, सब कुछ सिखाएं। भाई सोचो तो सही, 5 घंटे या 6 घंटे वहाँ रहते हैं, उसके बाद 18 घंटे या 19 घंटे आपके पास रहते हैं, लिहाजा आपने उनकी तरबियत करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अब किसी ने सोचा भी हम इनकी तरबियत करेंगे, तरीका ये तरबियत गलत होता है, दुरुस्त तरीका नहीं होता है, बड़ा हार्श ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, बड़ी सख्ती करते हैं हम बच्चों पे। सख्ती से बच्चे मानने वाले नहीं हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल रहा खिदमत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहा कभी एक बार भी तुर्शी नहीं की, तलखी नहीं की मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह अगर तरबियत आपने करनी है तो तुर्शी और तलखी से नहीं, बल्कि मोहब्बत से, नरमी से, आजिज़ी से और बेहतरीन मिसालें देकर। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब बच्चा कभी गुस्से में होता उस वक्त हम शुरू करते हैं उसको समझाने की बात, पर उस वक्त कैसे करेगा वो तो वही है जो हम कहते हैं ग्रेकविज नून। ग्रेकविज नून क्या कह रहे, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता है। मौजून वक्त, प्रॉपर टाइम देखना है, किस वक्त इस बच्चे का मूड ठीक है, खुश है, हंस खेल रहा है, उस वक्त उसको बात समझानी चाहिए बड़े, और वो भी बड़ी मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ। तो ये दूसरी वजह रहती है। फिर तीसरी वजह क्या होती है, किस वजह से ये बच्चे हमारे ख़राब होते हैं और उनकी तरबियत नहीं हो पाती, कि जब एक माँ या एक वालिद इम्तियाजी सलूक करते हैं बच्चों के साथ, किसी बच्चे को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दूसरे से थोड़ा कम। कभी बेटे को तरजीह दी जाती है, बेटी को पीछे रखा जाता है। कुछ ऐसे हैं जो बेटी को देते हैं और बेटे को नहीं रखते हैं, या 2 बेटों में किसी के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक, किसी के साथ कम अच्छा सलूक। तो वो देखना है कि यहाँ इंतहाई अहम है ये बात। इसमें ये बात इंतहाई अहम है कि इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। और नंबर 4, चौथी चीज़ क्या है, किस वजह से बच्चे हमारे तबाह हो जाते हैं, तरबियत का असर कबूल नहीं करते या वो ख़राब हो जाते हैं, कुछ किसी नुकसान में आ जाते हैं, वो उसमें माँ की बद्दुआ या बाप की बद्दुआ का असर होता है। इस बात पे अच्छी तरह आप ध्यान दें, जो भी सुन रहा है, जिस तक भी आवाज़ पहुँच रही है, कि बच्चों को बद्दुआएं मत दो। एक वाक़ा सिर्फ रखूँगी तारीख से एक वाक़ा रखूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुद ही आपने फरमाया कि बनी इसराइल में एक माँ थी,
उस माँ ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा उसका जो था वो इंतहाई इबादत गुजार था, मसरूफ़ रहता था इबादत में। जुरैज नाम था उसका। वो बड़ा मसरूफ़ रहता इबादत में। वो नमाज पढ़ रहा है, नवाफिल अदा कर रहा है। तो माँ ने जब उसे पुकारा तो उसने सोचा नमाज ख़त्म करूँगा फिर जाऊँगा, नमाज ख़त्म करूँगा फिर जाऊँगा, क्योंकि नफल अदा कर रहा था। तो उसे चाहिए था कि नमाज तोड़ कर आ जाए। माँ का ये हक है, जब आप माँ आपको बुलाए, हुजूर का फरमान है जब माँ आपको बुलाए आपको फौरन लब्बैक कहना चाहिए। हमारी बच्चियाँ जो भी सुन रही हैं वो भी देखें कि माँ के साथ किस किस्म का वो सलूक करती। नमाज तोड़कर आपको जाना है, नमाज की बात ही नहीं। आप मोबाइल में मसरूफ होती हैं, ठहरो मम्मा अभी ठहरो थोड़ा सा, आपको बुलाते हैं भाई काम है कुछ ना, अभी ठहरो थोड़ा सा। मोबाइल में मसरूफ रहेंगी या किसी और काम में, खेल में, तमाशे में, लेकिन माँ या बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि माँ बुलाती है, जुरैज थोड़ा सा देर कर देते हैं, नमाज मुकम्मल करने के बाद जाते हैं। जब उन्होंने देर की तो माँ ने उसे बद्दुआ दी। उसने कहा जा अल्लाह ताला तुझे किसी बदकार औरत का मुंह दिखा दे, किसी जानिया का मुंह तुझे दिखा दे। फिर क्या होता है कि जहाँ उसकी इबादत गाह थी, वो इबादत में मसरूफ़ रहता था, वहाँ पास में एक लौंडी जो थी वो बकरियां चराया करती थी। उस लौंडी ने बदकारी की, कोई गडरिया था, उसकी वजह से उसके यहाँ एक वलदुज़्ज़िना यानी बच्चा पैदा होता है, हराम बच्चा पैदा होता है। जब लोगों ने उसे पकड़ा, उस लौंडी को, बताओ किसका है ये बच्चा, बताओ हम उसको सज़ा देंगे, तो उसकी ज़ुबान से निकल गया जुरैज का। लोग हैरान रह गए कि इस कदर ये इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, इबादत में हर वक्त मसरूफ़ रहने वाला ये शख्स, क्या इससे ऐसी गलती हो सकती है, बदकारी करेगा ये शख्स? लेकिन जब उसने बता दिया तो वो फौरन गए, तो उसकी जो इबादत गाह थी उसको तोड़ दिया। जो माबद बनाया था उसने, जहाँ इबादत करता उसको तोड़ फोड़ की, उसके साथ भी बड़ी बदतमीजी की। लेकिन ये बड़ा इबादत गुजार था, नेक था। ये समझ गया कि मेरे लिए माँ की बद्दुआ है। उसने तौबा की, ये माँ ने बद्दुआ किया, तौबा की, नवाफिल अदा किए, कुछ दुआ की। दुआ करने के बाद ये फौरन उस लौंडी के पास गया। उस लौंडी की गोद में वो बच्चा था और उस बच्चे से पूछा बताओ तुम किसकी औलाद हो? तो बच्चा बोल पड़ा, जो अभी 1 दिन या 2 दिन का था। उसने उस गडरिए का नाम बोल दिया, उस शेफर्ड का नाम बोल दिया जिसका वो बच्चा था। तो फिर लोगों को बड़ा एहसास हुआ। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की थी बिल्कुल बचपन में, इसी तरह से 3 लोगों का तज़किरा आता है। उनमें एक ये भी है कि इन्होंने भी गवाही दी उसके हक में कि ये फलां का बच्चा है, इसका बच्चा नहीं। फिर उसकी कदर की, अल्लाह ताला ने फिर उसको इज़्ज़त अता की जब उसने तौबा की। लेकिन यहाँ जो मैंने बात बतानी है वो ये है कि बद्दुआ किस कदर असरअंदाज होती है। लिहाजा बहुत सारे वाक़ात ऐसे हैं कि एक माँ ने बेटे से कहा, कुछ नाफरमानी उसने की, उसने कहा उससे तू मर जा, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। लेकिन किस वक़्त उसको मौत दी? जब वो जवानी, अभी छोटा था उस वक़्त उसने कहा था। जब वो जवान हुआ, शादी की तैयारी थी, 25 या 26 साल उसकी उम्र थी, अब बिल्कुल दुल्हा बन चुका है, अब इसने घोड़े पे सवार होना है, जाना है। अचानक हार्ट अटैक होता है, क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसे पता नहीं है किस वजह से, लेकिन ये उसकी बद्दुआ थी जो उसने उससे पहले 20-25 साल बद्दुआ की। लिहाजा बद्दुआ से बचना चाहिए किसी भी किस्म की। तो ये फ़र्ज़ बनता है, ये फ़र्ज़ है माँ पे, बाप पे, दोनों पे, कि वो बद्दुआ के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल न करें इस किस्म के अल्फाज। चौथी चीज़ ये। तो 5वीं चीज़ जो बताऊंगा मैं, सबसे अहम तरीन चीज़ जो ये है कि अगर हमारी माँओं ने तरबियत करनी हो बच्चों की, तो उसमें पहला नंबर जो आता है हमारा अपना आता है। अगर हम खुद गलत करेंगे, बच्चों को नसीहत करेंगे अच्छा करने की, सही करने की, वो नहीं करेंगे। गोया पहले हमने खुद अमल करके दिखाना है। अगर हम खुद तौहीद के अलमबरदार बनेंगे, हमारे अंदर शिर्क ना हो, तो फिर हम तौहीद का दर्स बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि वो देख कर ज़्यादा पकड़ते हैं, सुनकर कम, देख कर ज़्यादा वो अमल करने लगते हैं। हम खुद झूठ बोलने वाले होंगे, बच्चों से कहेंगे झूठ मत बोला करो, वो हमारी इस बात पे अमल नहीं करेंगे। अगर हम खुद
गलत चीजें देखेंगे, हमारी निगाहें गलत देखेंगी। बच्चों से हम कहेंगे गलत मत देखा करो, गलत बात है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम गिबतें करते रहेंगे, पराई औरतों की बातें करते रहेंगे, पता नहीं किस किस किस्म के बहतान तराजे हम करते रहेंगे। फिर बच्चों को हम नसीहत करेंगे, बच्चे वो उस बात पे अमल नहीं करेंगे। तो ये इंतहाई अहम तरीन बात है कि हम खुद जब अच्छे बनेंगे तो ये सबसे बड़ा, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि एक तोला अमल वो काम करता है जो 1 टन वाज काम नहीं करेगा। यानी अगर 1 टन वाज आप करेंगे, उससे भारी है ये कि आप 1 तोला अमल करें। थोड़ा सा अमल जो है ज्यादा इफेक्टिव है तकरीर से। कितनी लंबी लंबी तकरीरें आप करेंगे, उसका उतना असर नहीं होगा जितना अमल का असर होता है। तो ये 5वीं चीज थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो यहाँ इन चीजों को सामने रखकर मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आज आप तहिया करें, आज आप तहिया करें, पुख्ता इरादा करें कि आज तक जो कुछ हुआ वो हुआ। परेशान नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप एक ही लफ्ज दिल से निकालेंगे, अल्लाह से करेंगे तौबा कि अल्लाह हमें माफ कर दे, और अब तौफीक अता फरमा कि आज के बाद हम ये जो बच्चों के हुकूक हैं उनको अदा करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो अल्लाह ताला के हुकूक हम पर है वो अदा करने की कोशिश करेंगे। आज के बाद हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन दर्स रखेंगे हम अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, इस अंदाज से, न सिर्फ जुबान से बल्कि अमली। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।